کے آغاز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں چھوٹی عید کی بڑی خوشیوں کے حوالے سے۔ تو دن ڈھلتے ہی لوگوں نے تفریح گاہوں کا رخ کر لیا ہے۔ بچے بڑے سب پارکوں میں پہنچ گئے ہیں اور عید کا مزہ دوبالا کرنے میں مگن دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں مبین حیدر سے، جو کہ اس وقت موجود ہیں ریس کورس پارک میں۔ جی بتائیے گا۔ کہ جیسے میرا کیمرامین شہباز حنیف آپ کو دکھا سکے، میرے عقب میں جو ہیں فیملیز موجود ہیں۔ جیسے ہی سورج جو ہے تپش کم ہوئی ہے، دن ہلکا سا ڈھلنے کی طرف گیا ہے، تو لوگوں نے پارکوں کا رخ کر لیا۔ کثیر تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں، فیملیز کے ہمراہ، دوست احباب کے ہمراہ۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ حلقہ احباب کے دوست موجود ہیں جو کہ دوستوں کے ساتھ یہاں پر اپنی عیدی خرچنے کے لیے آئے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ عید کا پہلا روز ہے، یہاں پر موجود ہیں آپ، مزہ آ رہا ہے، کیا تاثرات ہیں آپ کے اس متعلق؟ جی بہت مزہ آ رہا ہے۔ جیسے عیدی جمع ہوئی ہے ہماری، ہم گھر سے نکلے ہیں دوستوں کے ساتھ بائک وغیرہ پہ، اب ادھر آ کے ہم پہنچے ہیں، ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں، ابھی کھانا وغیرہ بھی کھانے جانا ہے، سارا کچھ کریے، ابھی بہت مزہ آیا۔ دوستوں کے ساتھ نکلے ہیں، عیدی خرچنے کے نکلے ہیں۔ ایک اور شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں، پہلا روز ہے، کتنی عیدی ملی، کیا صورتحال ہے، کیسا رہا آج کا دن آپ کا؟ جو بھی عیدی ملی ہے سارے دوستوں کے ساتھ اڑا دی ہے، اب پھر رہے ہیں، ہم گھوم رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، ماشاء اللہ سے اچھا لگ رہا ہے۔ دوستوں کے ساتھ باہر نکلے ہیں اور یہ گیدرنگ ہوتی ہے، ایک عید جب آتی ہے تو ماشاء اللہ بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ جیسے کہ آپ نے سنا، جیسے عید آتی ہے تو دوست احباب کے ساتھ جو ہے گیدرنگ کی جاتی ہے، جہاں پہ لوگ انجوائے کرتے ہیں، عیدی دی جاتی ہے، میٹھی عید کنسیڈر کی جاتی ہے، جہاں پر پہلے گھر میں جو ہے میٹھی سوئیاں کھائی جاتی ہیں، پھر بچوں کو عیدی دی جاتی ہے، پھر بچے جو ہے عیدی خرچنے کے لیے پارکوں کا رخ کرتے ہیں، جہاں پہ آ کے وہ اپنی عیدی خرچتے ہیں، دوستوں کے ساتھ ہلا گلا کرتے ہیں اور خوب موج مستی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ امید کرتے ہیں اسی طرح سے جو ہے یہاں پر جو لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ خوب اپنی عید کو اسی طرح انجوائے کریں گے۔ جی ٹھیک ہے مبین، اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ عید الفطر کے پہلے روز دعوتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ خواتین نے کچن میں ڈیوٹی سنبھالی ہے، جبکہ مرد بھی خواتین کا ہاتھ بٹانے میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں۔ مزے کے پکوانوں میں مٹن قورمہ، کوفتے، بریانی اور حلیم شامل ہے، جبکہ شہریوں نے اپنے پیاروں کے ساتھ عید منانے کو خوش آمدید قرار دیا ہے۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں بلال عقیل سے، جو کہ ایک فیملی کے ساتھ موجود ہے۔ جی بلال۔ جی بالکل، آج عید الفطر کا پہلا روز ہے اور جو عزیز و اقارب ہیں ان سے میل ملاپ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس وقت میں کنال روڈ پر موجود ہوں اور میرے ساتھ ایک فیملی ہے، جہاں پر ہم نے دیکھا کہ بہن بھائی، عزیز و اقارب اور رشتہ دار جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور آج کا دن جو ہے وہ اس میں اپنی جو پرانی یادیں ہیں ان کو بھی تازہ کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ایک فیملی موجود ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سب سے پہلے تو عید مبارک، اور رشتہ دار کیا، اپنا خون ہی ہمارے گھر آئے ہوئے، ہماری بہن ہیں، بھائی ہیں، بھابھی ہیں، ماں جی ہیں، اور یہی مل بیٹھ کے کھانے کو جو ہے ہم عید کہتے ہیں۔ جس دن ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں اس دن ہماری عید ہوتی ہے۔ آج عید کا خاص موقع ہے تو اس لیے ایک خاص اہتمام ہوا ہے۔ ہم کچھ بزرگ سے بھی بات کرتے ہیں جو اس فیملی کو لیڈ کرتے ہیں۔ جی ہمارے گھر میں ابھی بھی پرانی روایت ہے اور ہم وہی روایت جو ہے اس کے مطابق سب بہن بھائی اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، اور جب ہم خوشیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ کھانے سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ بڑا مزہ آ رہا ہے اور بڑی اچھی عید گزر رہی ہے۔ سر آپ بتائیے کتنی ہیلپ کی ہے کھانے میں آپ؟ جی وہ تو جیسے ہم لوگ کرتے ہیں عید والے دن وہی کی ہے، لیکن آج آپ کی وساست سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو عید کا تہوار ہے اس دن غریبوں کو مت بھولیں۔ پورا رمضان آپ نے روزے رکھے اور کوشش کریں کہ کسی ایک بندے کے گھر راشن پہنچا دیا کریں تاکہ ان کی بھی عید ہو جائے۔ جی راشن پہنچا دیا کریں تاکہ ان کی بھی عید ہو جائے، اور یہی تہوار ہوتے ہیں جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں، آپس میں گپ شپ کرتے ہیں، مل کر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو تہوار ہوتا ہے اس کی یادیں بھی جو ہے وہ دوبالا ہو جاتے ہیں، اس کا مزہ بھی دوبالا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بلال، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کرتے ہیں عید الفطر ملنے جلنے اور محبتیں بانٹنے کی عید ہے۔ لاہوری عید پر خوابوں سے لطف اندوز نہ ہوں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ گڑی شاہوں میں عید کی سوغات چکن چٹخارا قتلمہ شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ اس وقت شہریوں کی بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے حمزہ خورشید، جو کہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں۔ جی حمزہ۔ ہاں جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں گڑی شاہ بازار لاہور میں، اور جہاں عید الفطر جو ہے وہ ملن کی عید کہلائی جاتی ہے، نفرتیں ختم کر کے محبتیں بڑھانے کی عید کہلائی جاتی ہے، وہاں پر شہر لاہور اگر لاہور کے کھابے انجوائے نہ کرے تو وہ بات مناسب نظر نہیں آتی۔ میں اس وقت جہاں موجود ہوں یہاں پر ایک عید کی سوغات لگتی ہے جو کہ چکن چٹخارا قتلمہ ہوتا ہے۔ ویسے ہم عام طور پہ قتلمہ دیکھتے ہیں جس میں مسالے لگائے جاتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے وہ اسپیشل چکن بھی ڈالا جاتا ہے اور ساتھ چٹخارے مسالے ڈالے جاتے ہیں، جس کو کھانے کے لیے شہری جو ہیں وہ ایک تو شہر لاہور سے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو اتنا پسند کرتے ہیں جو شہر سے باہر سے بھی آتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں جو یہ قتلمہ انجوائے کرنے آئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بھائی بتائیے گا
कब से आ रहे हैं और कहाँ से आए हैं? मैं गवाल मंडी से आया हूँ और हम हर साल ही आते हैं तकरीबन यहाँ से खाने। अभी हमने सुबह भी खाया है तो हमें अच्छा लगा था। अभी मेरे दोस्त आए थे, मेहमान आए थे, तो इनको ट्राई करवा रहे हैं, तो अगर अच्छा लगेगा तो और भी लेंगे हम इनसे। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि शहरी का कहना था कि जो हम यहाँ से गवाल मंडी से आए हुए हैं गड़ी शाहू में ये कतलामा एंजॉय करने के लिए, और सुबह भी आए थे और अब मेहमानों को साथ लेकर आए हुए हैं, तो अगर पसंद आया तो और मज़ीद भी लेकर जाएंगे। ये जो कतलामा है ये ईद की सौगात है और सिर्फ ईद के ईद गड़ी शाहू बाज़ार में इसकी रौनक सजती है। ठीक है, हमजा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। CEO LWMC शहर को साफ रखने के लिए पुरअज़्म है। बाबर साहबदीन का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया गया है। ईद भी वर्कर्स के साथ मनाई है, जबकि 10,000 सैनिटरी वर्कर्स, 150 अफसरान, डिप्टी CEOs भी फील्ड में मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे इमरान अकबर। जी बताइए। आज ही बिल्कुल, आज ईद उल फितर है और COLWMC बाबर साहबदीन शहर लाहौर को साफ रखने के लिए पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं। ईद के रोज़ मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए हैं। ईद में अपने वर्कर्स के हमरा गुजारी है। COLWMC ने ईद उल फितर पर बेहतरीन सफाई इंतजाम यकीनी बनाने पर वर्कर्स को शाबाश भी दी है। ईद की मुनासबत से वर्कर्स में मिठाई भी तकसीम की गई है, जबकि पिको रोड, मॉडल टाउन, लिंक रोड, फैसल टाउन, बरकत मार्केट में सफाई इंतजाम का जायजा लिया। इकबाल टाउन, नून मार्केट, केनार रोड, फिरोजपुर रोड का भी दौरा किया, जिसमें गुलबर्ग जे रोड, मार रोड पर भी ऑपरेशनल वर्किंग को चेक किया गया है। 10,000 सैनिटरी वर्कर्स, 150 अफसरान, डिप्टी CEOs भी फील्ड में मौजूद रहे हैं, जिसमें COLWMC बाबर साहबदीन ने सफाई ऑपरेशन की निगरानी के लिए खुद फील्ड में मुतहरिक रहे हैं, जिसमें शहर भर के पार्क और सब तफरीही मकामात पर सफाई गैर मामूली इक़दाम किए जा रहे हैं। बाबर साहबदीन का कहना है कि ईद के त्यौहार पर लाहौरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। लाहौर की सफाई को यकीनी रखने के लिए तमाम तर वसाइल इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं और तमाम वर्कर्स को शाबाश भी दी जा रही है, ताकि वर्कर्स जो हैं अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से जो है मार्केट्स को भी साफ करें और उसके साथ साथ पार्क्स की भी हिफाजत जो है वो लाजमी है, जिसके लिए कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो है वो भी फील्ड में मौजूद है और उनके साथ भी मौके पर जाकर विजिट करवाए जा रहे हैं। तमाम जो LWMC के वर्कर्स हैं उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। 24 घंटों में 3 शिफ्टों में जो है वर्कर्स ड्यूटी दे रहे हैं, जिसमें पहली शिफ्ट में जो वर्कर्स हैं वो 6,000 हैं, दूसरी शिफ्ट में पहली शिफ्ट में 6,000 वर्कर्स हैं जिन्होंने काम किया है। इमरान अकबर तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। CCPO बिलाल सदीक कमियाना की पार्कों और तफरीही मकामात की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत जारी कर दी गई है। उनकी जानिब से कहा गया है कि पार्कों और तफरीही मकामात पर चेकिंग के लिए बाद दाखिले की इजाज़त दी जाए। डॉल्फिन स्क्वाड, पीरू, एलीट टीमें पार्क के तफरीही मकामात के गिर्द मौसर पेट्रोलिंग करें। इस हवाले से आपको बताएं कि CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की पार्कों और तफरीही मकामात की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत जारी कर दी गई है। उनकी जानिब से कहा गया है कि पार्कों और तफरीही मकामात पर चेकिंग के बाद दाखिले की इजाज़त दी जाए, जबकि डॉल्फिन स्क्वाड, पीरू, एलीट टीमें पार्कों तफरीही मकामात के गिर्द मौसर पेट्रोलिंग करें। उनकी जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं। इस हवाले से आपको बताते चलें कि CCPO बिलाल सदीक कमियाना की पार्कों और तफरीही मकामात की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत जारी की गई है। उन्होंने कहा है कि पार्कों और तफरीही मकामात पर चेकिंग के बाद दाखिले की इजाज़त दी जाएगी, जबकि डॉल्फिन स्क्वाड, पीरू, एलीट टीमें पार्कों के गिर्द मौसर पेट्रोलिंग करें। उनकी जानिब से मज़ीद क्या हिदायत जारी की गई हैं, ये बताएंगे शाहज़ेब शहजाद। जी शाहज़ेब। जी बिल्कुल, CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की पार्कों और तफरीही मकामात की सिक्योरिटी बढ़ाने की हदायत की गई हैं, जबकि पार्कों और तफरीही मकामात पर आने वाले शहरियों को मुकम्मल चेकिंग के बाद दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। CCPO बिलाल सदीक कमियाना का कहना है कि शाम के औकात में हुल्लड़बाजी, वन व्हीलिंग, हवाई फेरिंग के तदारिक के लिए खसूसी नाके लगाए गए हैं। डॉल्फिन स्क्वाड, पीरू, लीड टीमें पार्कों तफरीही मकामात के गिर्द मौसर पेट्रोलिंग करेंगी, जबकि हुल्लड़बाजी, खवातीन की बदतमीजी, हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग पर फौरी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है शाहज़ेब, इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सेंट्रल जेल लाहौर का दौरा किया है, कैदियों से मुलाकात की है, जबकि उनमें तोहफ़े भी तकसीम किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ख़वातीन कैदियों से मसाइल पूछे हैं, हुकाम को मसाइल फ़ौरी हल करने की यकीन दहानी भी करवाई है। जेल के अस्पताल में ज़ेरे इलाज कैदियों से भी मिले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कैदियों के साथ इंसाफ के लिए कितने सो मोटो लिए गए। सो मोटो सिर्फ मुफाद आमा के लिए होना चाहिए। मुल्क के बेहतर मुफाद में हमें इकट्ठा होना चाहिए। मुल्क को जल्द बहरानों से निकालेंगे। जेल में बीमार कैदियों को तिब्बी सहूलियात में बहुत वक्त लगता है। कैदी अपने किए की सज़ा पहले ही काट रहे हैं, मज़ीद अजियत देना गलत है। कैदी अस्पताल जाने के लिए रिश्वत देने पर मजबूर होते हैं।
शहर के दीगर मकामात की तरह दरबार अली हजवेरी पर नमाज ईद अदा की गई। तारीखी शालीमार बाग के निगार खाने में भी ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। नासिर बाग में भी ईद उल फितर की नमाज का रूह परवर इज्तिमा हुआ। उम्मत मुस्लिमा की सलामती के लिए दुआ की गई। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर ईद उल फितर के इज्तिमात। दाता दरबार में ईद उल फितर का बड़ा इज्तिमा हुआ। मुफ्ती रमजान सियालवी ने नमाज ईद पढ़ाई। फर्जंद इस्लाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआ की गई। तारीखी शालीमार बाग के निगार खाना में नमाज ईद का खसूसी इज्तिमा हुआ। इलामा सैफुल्लाह खालिद की इमामत में नमाज अदा की गई। मर्दों, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नासिर बाग में भी ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। इमामत इलामा हसन रजा हमदानी ने करवाई। फर्जंद इस्लाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ईद इज्तिमात में फर्जंदान इस्लाम की जानिब से मुल्क और कौम की तरक्की, अमन और सलामती के लिए दुआएं की और एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। ईद का त्यौहार हर कोई खुशी से सरशार। मीठी ईद पर मुख्तलिफ तकरीबात का भी एहतमाम किया गया। साबिक मेयर लाहौर ख्वाजा अहमद हसन की जानिब से मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के लिए ईद मिलन पार्टी सजाई गई। ये रिपोर्ट देखिए। दूसरों को खुशियों में शरीक करना ही ईद है। साबिक मेयर लाहौर ख्वाजा अहमद हसन ने लीगी वर्कर्स के लिए ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया। ईद मिलन पार्टी साबिक मेयर लाहौर की रिहाइशगाह में सजाई गई। लीगी कारकुनों ने ख्वाजा अहमद हसन को गुलदस्ते पेश किए। ईद मिलन पार्टी से खिताब करते हुए ख्वाजा अहमद हसन का कहना था कि ईद के मौके पर माली तौर पर कमजोर लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए। मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने बिलखसूस वो अफराद जो आप समझते हैं जिन्हें बहुत सख्ती में से गुज़र रहे हैं और उन्हें माशी सख्तियाँ हैं और सियासी सख्तियाँ हैं, आप ज़रूर उनसे बगलगीर हों, उनके लिए दरवाज़े खोलिए और उनको खुशियाँ दीजिए। ईद मिलन पार्टी में शबीर अहमद गुजर, खालिद गुजर, आरिफ गुजर, हारिस गुजर, मोहम्मद समी, आसिफ खान, जैकी इकबाल, मोहम्मद असलम, इमरान वहीद और दीगर शरीक हुए। और अब बात करते हैं ईद पर मौसम के हवाले से। तो अब्र रहमत बरसने से मौसम खुशगवार हो गया है। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी का एहसास होने लगा है। ईद की खुशियों का मज़ा भी दोबाला हो चुका है, जबकि फ़िज़ाई आलूदगी के तनासुब में गैर मामूली कमी वाक़ई हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। मीठी ईद की खुशियों में मौसम ने भी खूब रंग जमाया। अब्र रहमत बरसने और ठंडी हवा चलने से शहर का मौसम खुशगवार हो गया। गढ़ी शाहू, अलामा इकबाल रोड, एबर्ट रोड, लक्ष्मी चौक, शालीमार में हल्की बारिश, मॉल रोड, हाल रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम दिल फरेब मौसम ने ईद की खुशियों को दोबाला कर दिया। शहर में फिजाई आलूदगी का तनासुब भी गैर मामूली तौर पर गिर गया। लाहौर फिजाई आलूदगी की फहरिस्त में 20वें नंबर पर आ गया। शहर का मुजमुई AQI 98 रिकॉर्ड किया गया। कैंट के इलाके में सबसे ज्यादा AQI 139 रहा। गुलबर्ग मेन बुलेवर्ड में 134, सैयद मुरातब अली रोड पर 132 AQI रिकॉर्ड किया गया। वॉल्टन रोड पर 127, DHA फेज 8 में 102 और जोहर टाउन में 99 AQI रहा। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ मुख्तलिफ बेकरियों पर शहरियों का रश लग गया है। शहरी अपने अजीज़ व अकारिब के लिए मिठाई और केक खरीदने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। खरीदार कहते हैं कि मीठी ईद है तो मिठाई ज़रूरी है। ये रिपोर्ट देखिए। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ मीठे के बगैर अधूरी हैं। लाहौरियों ने बेकरियों का रुख कर लिया। किसी ने बर्फी खरीदी, किसी को गुलाब जामुन पसंद आए, किसी ने चॉकलेट केक तो किसी ने फ्रेश क्रीम पाइन एप्पल केक पर हाथ साफ किया। खरीदारों का कहना है कि ईद की नमाज अदा करने के बाद मिठाई की दुकानों का रुख किया है। मीठी ईद है तो मिठाई तो जरूरी है। अपने और अजीजों अकारिब के लिए मिठाई खरीद रहे हैं। लाहौरियों की ईद मिठाई, कचौरी और क्या कहते हैं शीर कौरमे के बगैर नहीं होती और अल्हम्दुलिल्लाह ये मीठी ईद है, इस पे तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। शहर की मिठाई की दुकानों पर लगा रश मीठी ईद का एहसास दिलाता है। फाउंटेन हाउस में भी ईद मेले का एहतमाम किया गया। कमिश्नर लाहौर समेत मुख्तलिफ शख्सियात ने फाउंटेन हाउस का दौरा किया और तोहफ़े तकसीम किए। फाउंटेन हाउस में ईद मेला सजिया। फाउंटेन हाउस के कुछ मेंबरान को उनके अजीज़ व अकारिब मिलने आए। जिनका कोई नहीं आया उनको मुख्तलिफ शख्सियात ने गले लगाया। कमिश्नर लाहौर और मुखैर हजरात ने फाउंटेन हाउस का दौरा किया और मेंबरान में तोहफ़े तकसीम किए। फाउंटेन हाउस के मेंबरान ईद मेले से खूब लुत्फानंदोज हुए। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि ईद पर ऐसे लोगों को अपनी खुशियों में शरीक करना चाहिए। मकसद यही था कि ईद वाले दिन हम ऐसे हाउसेस में ज़रूर जाएं जहाँ पर
हमारे जैसे इंसान यहाँ पे मौजूद हैं और खुशी का इंतज़ार कर रहे हैं। फाउंटेन हाउस के MS डॉक्टर इमरान का कहना था कि खुशी होती है कि लोग ईद के पुरमुसरत मौके पर इन लोगों को मिलने आते हैं। ईद मेले में फाउंटेन हाउस के मेंबरान की खुशी दीदनी थी। उनका कहना था ईद जैसे बड़े त्यौहार को भरपूर तरीके से मना रहे हैं। ईद मेले में फाउंटेन हाउस के स्टाफ मेंबर्स और मरीजों ने शिरकत की। ईद मेले में रिवायती खानों के स्टॉल्स भी लगाए गए। नमाज ईद उल फितर की अदायगी के बाद शहरियों ने कब्रिस्तानों का रुख कर लिया। शहरियों की बड़ी तादाद गढ़ी शाहू कब्रिस्तान पहुंच गई और अपने प्यारों की यादों में खो गई। ये रिपोर्ट देखिए। ईद की खुशियों में बिछड़ों की याद सताने लगी। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों ने कब्रिस्तानों का रुख कर लिया। शहरियों ने अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी की और उनकी मगफरत के लिए दुआ की। शहरियों ने कब्रों पर फूलों की चादरें भी चढ़ाईं। शहरियों का कहना है कि ईद की खुशी है, लेकिन साथ साथ अपने प्यारों के बिछड़ने का दुख भी है। नमाज के बाद यहाँ अपने अजीज़ व अकारब की दुआए मगफरत के लिए आए हैं। वाला साहब की कब्र पे आए हैं, उनकी कमी पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। उन्होंने हमें कब्रिस्तान आना सिखाया, वो अपने बड़ों की कब्रों पे लेके आते थे हमें, आज हम उनकी कब्र पे आए हैं। अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। मेरे वालिद भी इधर है, मेरी वालदा भी इधर है, मेरी दादी भी इधर है, मेरी बेगम भी इधर है, तो सब के लिए हम जहाँ पे जो है वो साल स्वाब के लिए आते हैं। इस साल कब्रिस्तानों में गुज़िश्ता साल से कम रेट पर फूल फरोख्त हुए। शहरियों ने फूल, अगरबत्तियाँ और बाजरा भी खरीदा। अपने प्यारों की कब्रों की सफाई भी की। कैमरामैन उमैर रईस के साथ बिलाल अकील, लाहौर न्यूज़।